Hello students, today we will learn about MS PowerPoint views. In your previous class, that is in 4th class, you have already learned what MS PowerPoint is. MS PowerPoint is basically a slide making or presentation making program that helps a user to represent any data in the form of presentation with the help of slides, graphics, images, videos, audios, etc. Okay. In our previous class, we also have studied about formatting the slides in a PowerPoint presentation. How can we format the slide? How can we design the slide? How can we insert text? How can we insert images, etc. All those things we have already learned in our previous class, that is in class 4th. Now in today's class we will be learning about various different views of Microsoft PowerPoint. So first one is master views, and under master views it comes slide master. What is slide master? Slide master view enables the user to modify the slide layout and appearance of the slides in the presentation. Okay. So in using while you are in the slide master view, the slide master view will provide you the option to modify the slide layout, like text changing, the font changing, color changing, the appearance of the slides, etc. in a presentation. Next, editing the slide master affects every slide, including the newly added slides in the presentation. Suppose using the slide master view, you have changed in one slide, that changes will also be impactful, or the same changes will also be done throughout the presentation. Okay. So मतलब कि जितने भी सारे अपने अगर एक स्लाइड में इसको आपने चेंज किया, कोई भी एक स्लाइड को एडिट किया स्लाइड मास्टर व्यू में, सो व्हाट विल हैपन, एवरी स्लाइड विल गेट्स अफेक्टेड. ओके. सपोज उसके बाद आपने एक नया स्लाइड ऐड किया, तो जो सेटिंग्स आपने चेंज किया, जो मॉडिफाई आपने किया, वो न्यू स्लाइड जो आएगा वो भी उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आएगा. ओके. सो दिस इज हाउ स्लाइड मास्टर व्यू वर्क्स. नेक्स्ट, there are some amazing facts in Microsoft PowerPoint. What are that? First is, when you select a theme in PowerPoint, it rearranges the text on the slides and add colors and shapes to the background. This can be edited with a slide master view. So क्या है चीज़, जब आप क्या कर रहे हो, PowerPoint में कोई भी एक थीम सिलेक्ट कर रहे हो या फिर थीम चूज कर रहे हो, तो उस थीम के अकॉर्डिंग ही PowerPoint ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को अरेंज करके स्लाइड में ऐड करते हैं. उसी थीम के अकॉर्डिंग उसी को कलर से ऐड करते हैं, उसी को उस टेक्स्ट पे, या फिर कुछ जो टेक्स्ट है उसी के हिसाब से उस पर कलर डालते हैं, और सेम शेप्स उसी के हिसाब से डाल के उसको बैकग्राउंड में ऐड करते हैं. ठीक है. और ये सब हम एडिट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वी हैव दिस कैन बी एडिटेड विद द स्लाइड मास्टर व्यू. ओके. तो ये जो डिज़ाइन है थीम का, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे एडिट कर सकते हैं, through the slide master view. Next, editing the slide master or layout after creating the individual slides will need to reapply the changed layouts to the existing slides in the presentation in normal view. Okay. Suppose हमने कोई भी एक स्लाइड को मॉडिफाई किया, इंडिविजुअल स्लाइड को मॉडिफाई किया, ठीक है, या फिर उसके लेआउट को चेंज किया, तो अगर हम नॉर्मल व्यू पे रहेंगे तो क्या करना होगा हमें, वी नीड टू रीअप्लाई ऑल दोज सेटिंग्स और ऑल दोज चेंज्ड लेआउट्स टू द एग्जिस्टिंग स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन के बाकी जो भी स्लाइड्स होगा उस पर भी हमें वो सारे चेंजेस अलग अलग से अप्लाई करना है, रीअप्लाई करना होगा, क्योंकि नॉर्मल व्यू में अगर आपने एक स्लाइड पे चेंज किया तो वो एक स्लाइड पे ही रहता है. ओके. नेक्स्ट इज द स्टेप्स टू यूज स्लाइड मास्टर व्यू. हम लोग स्लाइड मास्टर व्यू को कैसे यूज कर सकते हैं. फॉर डूइंग दैट व्हाट वी हैव टू डू, we have to first click on the view tab. Okay, first we have to click on the view tab, then
इन मास्टर व्यूज ग्रुप वी हैव टू क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन. ओके, जो मास्टर व्यू ग्रुप है उनमें जो स्लाइड मास्टर बटन है वी हैव टू क्लिक ऑन दैट. द स्लाइड मास्टर टैब अपीयर्स ऑन द रिबन. व्हेनेवर वी आर क्लिकिंग ऑन द स्लाइड मास्टर बटन, तो क्या होगा, द स्लाइड मास्टर टैब विल अपीयर ऑन द रिबन एंड द प्रेजेंटेशन स्विचेस टू स्लाइड मास्टर व्यू. तो और वो जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली स्लाइड मास्टर व्यू पे चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, इन स्लाइड पेन द करेंट स्लाइड मास्टर एंड लेआउट इज सिलेक्टेड एंड डिस्प्लेड फॉर एडिटिंग इन द स्लाइड एरिया और द मेन विंडो. तो क्या होता है, उसके बाद जब स्लाइड मास्टर व्यू पे चेंज हो जाता है, जो स्लाइड पेन होता है, इन द स्लाइड पेन द करेंट स्लाइड मास्टर एंड लेआउट इज सिलेक्टेड. तो जो स्लाइड पेन है उसमें जो करेंट स्लाइड मास्टर है और जो लेआउट है वो सिलेक्ट हो जाएगा. और वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो मेन विंडो है दैट इज़ नोन एज द स्लाइड एरिया. जो मेन विंडो है राइट साइड पे उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड एरिया. उस स्लाइड एरिया पे क्या होगा, जो करेंट स्लाइड मास्टर है और जो लेआउट है वो आ जाएगा. किस लिए, ताकि उस पर उसको एडिट करने में आसान रहे. ओके. नेक्स्ट, यू हैव टू स्क्रॉल अप द स्लाइड पेन एंड सिलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड. दिस इज स्लाइड मास्टर. ओके, तो जो स्लाइड पेन है लेफ्ट साइड में, यू हैव टू स्क्रॉल थ्रू दैट, उसको आपको स्क्रॉल करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड. और आपको कौन सा स्लाइड सिलेक्ट करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड. जो पहला वाला स्लाइड है यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन. दिस इज नोन एज द स्लाइड मास्टर. ठीक है, जो पहला स्लाइड है दिस इज नोन एज द स्लाइड मास्टर. अप्लाई द चेंजेस इन द स्लाइड एज यू रिक्वायर, चेंजिंग द थीम like inserting pictures, adding text box or shape etc. Okay, so after selecting the first slide, मतलब जो slide master है उसको select करने के बाद what you have to do, you have to apply the changes in the slide as you require, like changing the theme, inserting pictures, adding text box or shape etc. तो स्लाइड पेन में जाने के बाद फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो, यू हैव टू अप्लाई दोज चेंजेस इन द स्लाइड, लाइक चेंजिंग थीम, जो अगर थीम चेंज करना चाहते हो, पिक्चर्स ऐड करना चाहते हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हो या शेप ऐड करना चाहते हो एक्सेट्रा. तो आपको क्या करना है, वो फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद ही करना है. नेक्स्ट, यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज मास्टर व्यू बटन. उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो क्लोज मास्टर व्यू ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा. उस पर क्लिक करने से क्या होगा, now all the newly inserted slides will have the same theme and text in as in the slide master. तो मैंने जो पहले ही बोल दिया था कि जब भी आप स्लाइड मास्टर पे कुछ चेंज करते हो तो क्या होगा, वो चेंजेस सारे प्रेजेंटेशन के जितने भी स्लाइड्स है या फिर जो न्यू स्लाइड्स भी आप लोगे सब में वो सेम चेंजेस अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो क्लोज मास्टर व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अगर न्यू स्लाइड आपने इंसर्ट किया तो क्या होगा, जो न्यू स्लाइड इंसर्ट होगा उसमें भी सेम थीम और टेक्स्ट होगा जो स्लाइड मास्टर में है. ओके, सो दिस इज हाउ स्लाइड मास्टर वर्क्स. ऐसे ही स्लाइड मास्टर काम करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज viewing the presentation. How can we view the presentation? Okay, to view the presentation what we have to do, PowerPoint provides various slide views presented at the view tab. Okay, जो view tab है हमारे रिबन में उसमें बहुत सारे अलग अलग viewing styles दिया हुआ है, डिफरेंट स्लाइड व्यू ऑप्शन दिया हुआ है जो PowerPoint हमें प्रोवाइड करते हैं. तो क्या करते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द स्लाइड व्यू ऑप्शन और द स्लाइड शो व्यू. हाउ, फॉर व्हाट, टू फॉर और अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. ओके, जो हमारा जो नीड होगा उस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं. सो द फर्स्ट व्यू इज नॉर्मल व्यू. ओके, the normal view is the default view. The normal view is the default view that we see when we first start of the PowerPoint. Okay, so जब भी हम PowerPoint को ओपन करते हैं जो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट व्यू आते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू. इट डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड इन थंबनेल्स इन द स्लाइड पेन एंड द करेंट स्लाइड इन द स्लाइड एरिया. इसमें क्या होता है,
जितने भी सारे स्लाइड्स है वो लेफ्ट साइड के जो स्लाइड पेन है उसमें दिखाई देता है, और जो राइट साइड में स्लाइड एरिया है उस पर जो करंट स्लाइड जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो दिखाएगा। ठीक है, वो कहाँ पे दिखाएगा? राइट साइड पे, जहाँ पे स्लाइड एरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड द नोट्स एरिया एट द बटम, और नीचे एक नोट्स एरिया भी होता है। दिस इज द मेन एडिटिंग व्यू वेयर यू कैन क्रिएट एंड डिजाइन आवर प्रेजेंटेशन। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रेजेंटेशन व्यू। ओके, ये सबसे बेसिक प्रेजेंटेशन व्यू है, और हम इससे क्या कर सकते हैं? हम इससे ही जितने सारे एडिटिंग होता है या फिर जो भी है हम इसी से करते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। व्हाट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू? Slide sorter view sets all the slides in thumbnail form on the screen so that you can see how they look as a whole and apply transition effects and design changes to the whole presentation at once. Okay, this view also helps us to sort and organize the sequence by dragging of the slides. तो slide sorter view करता क्या है? ये जितने भी सारे slides हैं ना हमारे एक presentation में, उन सारे slides को thumbnail के form में slide area में दिखाता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक अलग अलग पेज अगर एक साथ हमें दिख जाए तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन द होल ये कैसा लगता है। ठीक है, एज ए होल ये कैसा दिखता है। और इससे सबसे बड़ी बात इससे क्या हो सकता है? हम सिंपली एक कोई भी थंबनेल को ड्रैग करके दूसरे जगह ले जाके उसको रीऑर्डर कर सकते, सॉर्टिंग कर सकते। ऑल दोज थिंग कैन बी डन यूजिंग द स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, नेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू। व्हाट इज आउटलाइन व्यू? Outline view displays the outline of the slides in the slide pane. Okay, so this outline view में क्या होता है? जो slide pane होता है लेफ्ट साइड में, उस पे सारे स्लाइड्स का आउटलाइन दिखाते रहते। This view helps only the text on your slide. This view displays only the text on your slide. The current slide is displayed in the slide area and the notes area. Notes are at the bottom. इस पे क्या होता है? जो सिर्फ टेक्स्ट है, कोई इमेज वगैरह दिखाता नहीं, ओनली जो टेक्स्ट है वो ही दिखाएगा। और द करेंट स्लाइड इज डिस्प्लेड इन द स्लाइड एरिया एंड द नोट्स एरिया एट द बटम, और जो करेंट स्लाइड है उसको स्लाइड एरिया में बीच में दिखाएगा, और नीचे की तरफ नोट्स एरिया भी दिखाता है आउटलाइन व्यू में। ओके, नेक्स्ट इज नोट्स पेज व्यू। व्हाट इज नोट्स पेज व्यू? दिस व्यू अलाउज द यूजर फॉर टाइपिंग द नोट्स फॉर द करेंट स्लाइड। ओके, तो जब भी आप नोट्स पेज व्यू सिलेक्ट करोगे तो जो करंट स्लाइड है उसके नीचे की तरफ एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। उस पर जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे वो टेक्स्ट जब नॉर्मल व्यू में जाओगे तो नीचे जो नोट्स एरिया है वो सेम टेक्स्ट टू द नोट्स एरिया में आ जाएगा। ओके, सो द नोट्स एरिया, वेयर द नोट एरिया इज लोकेटेड? नोट्स एरिया इज लोकेटेड बिलो द करंट स्लाइड and notes can be printed or included in the presentation. Okay, next is reading view. The last view is reading view. The reading view allows you to view the presentation in full screen. Like slideshow view, it shows the controls to browse the slides. Okay, so what is reading view? Reading view allows us to view the presentation in full screen like the slideshow view. Okay, so it is also almost similar to the slideshow view, and this also allows the user to view the presentation in full screen. Okay, so it shows the controls how to browse the slides. So the reading view से क्या होता है? ये कैसे स्लाइड को हम ब्राउज कर सकते हैं उसके कंट्रोल को दिखाते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लिसन टू द वीडियो वेरी प्रॉपरली, read your book carefully. We will meet in our next class. Okay, so thank you, have a nice day.